Paviria. And I have a brief introduction of him. And Mr. Rakesh Paviria right now is online. So he was supposed to be a first speaker of this gathering, but now he's the last speaker of this gathering. Welcome, sir. And Mr. Rakesh Paviria is an IPS officer, and he joined Delhi Police as an ACP in 1998 and served in various districts and units in Delhi and on deputation to Andaman and Nicobar and Mizoram also. And when he was ACP in Delhi, he served as ACP Kalkaji, Paharganj Crime and Railway, Delhi Kent, Dwarka, and PSO to President of India, DCP Rashtrapati, and DCP Traffic Outer Range and Central Range, DCP Crime Branch, Narcotics, and SP, CID as well, and DCP Headquarter, DCP Crime Branch, CRSR and Headquarter, DCP Northeast District. Presently, he is the Additional Commissioner of Police at Headquarter and IT in Police Headquarter. And as far as his education is concerned, he has done his graduation and LLB from Delhi University. And his hobbies are also mentioned that he's passionate about the sports, especially cricket and lawn tennis. After serving his during his service, he received a certain award from the government. The first award he received as a President Medal, Police Medal, commendation, and a disc from the Commissioner of Delhi Police, and play magnificent role during G20. And he's also played a policy maker role in the implementation of the honorary rank promotion system in Delhi Police. Now I would like to invite Dr. T.R. Naval to proceed further. Thank you. Now I invite our guest of honor, Shri Rakesh Pavaria, Additional Commissioner of Police, to share his valuable thought with us. Shri Rakesh Pavaria ji. Volume increase कर दो. Please increase volume. Yes, yes. Thank you, sir. Thank you very much, Naval sir, for inviting me and also allowing me to present myself online. I'm really sorry that I couldn't join in person. आज मुझे in emergency पंचकुला आना पड़ा अपने in-laws के यहाँ पे. So first of all, I congratulate Society for Implementation of Affirmative Action and Combating of Bias Crime. मुझे बताया गया है कि 6 साल से आप लोग सभी मिलके पे बैक टू सोसाइटी की कोशिश कर रहे हैं. एंड जैसा कि मेरे बारे में बताया गया कि आई एम ए गवर्नमेंट सर्वेंट एंड सर्विंग फॉर लास्ट almost 30 years in the central government as a police officer. And many of you must be knowing I'm a son of Shri D.S. Pavaria, who has been a judge in Delhi. And then I came into the police services. So, मेरा भी, in fact, मेरा कोई ऐसा कोई खास experience नहीं है. I think much more experienced officers, people, and who have really worked in all parts of society, लोग सब बैठे हुए हैं. बट मैं ये कहूँगा कि मैं जब मेरी ट्रांसफर जब मिजोरम हुई ऑफ लेट 2023 में, तब से आई रियली स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट कि अभी तक जो हमने किया अपने लिए ही किया और सोसाइटी के लिए हम ज्यादा कुछ कर नहीं पाए. हालांकि ये बात जो है मैं अपने कलीग से और अपने दोस्तों से करता भी था कि भाई हाउ टू नाउ पे बैक टू द सोसाइटी, कैसे हम कंट्रीब्यूट करें अपनी सोसाइटी की तरफ. और कुछ प्लेटफॉर्म बनाने के भी हमने सोची, लेकिन वो फिर जब हम मिजोरम गया तो आई जस्ट वांट टू शेयर समथिंग व्हिच रियली हैपेंड विद मी.
When I went to the Mizoram airport पे मैं जब गया, जब दिल्ली छोड़ के जा रहा था, तो मेरे हाथ में एक किताब थी, and the book name was Echoes from the Forgotten Past. The book was written by Vikram Sampath on Veer Savarkar. It's a 2-volume book, very beautifully written. And वो दोनों वॉल्यूम मैंने पढ़े मिजोरम में, मेरे पास बहुत टाइम था वहाँ पे. एंड उस किताब में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब के बहुत रेफरेंसेस आए. सो जब दोनों के शायद मुलाकात भी एक दो बार हुई, जब वो रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में वीर सावरकर जी जब रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में आए थे पोर्ट ब्लेयर से टूट के, तो मेरे दिमाग में ये आया कि हमने जो है, हमने गांधी भी बहुत पढ़ा, गांधी पढ़ाया गया हमें, नेहरू टैगोर सब पढ़ाया गया, वीर सावरकर भी हमने पढ़ लिए. अम्बेडकर पढ़ने का जो है वो अम्बेडकर नहीं पढ़ा हमने, ना हमें पढ़ाया गया. अब बात ये है कि अम्बेडकर जो है वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब के बारे में ना तो एनसीईआरटी किताबों में हमें पढ़ाया गया, ना ही सिविल सर्विसेज भी हमने किया. तो थॉट्स ऑन टैगोर आती थी, थॉट्स ऑन गांधी जी, थॉट्स व्हाट नेहरू हैज डन, बट कभी किसी भी एनसीईआरटी किताब में छोटा सा कोई मेंशन अगर होगा तो होगा. और there was never a mention about what Dr. B.R. Ambedkar did for us. So यानी फिर इसका निष्कर्ष ये निकला कि अम्बेडकर को पढ़ाया नहीं जाता, अम्बेडकर को पढ़ना पड़ता है या एक्सपीरियंस करना पड़ता है. तो मैंने भी फिर अम्बेडकर साहब के बारे में वहाँ पे अपने खुद किताबें मंगाई और पढ़ना शुरू किया. फिर जो है जब मैं दिल्ली आया तो मैंने भी सर जो है वो कुछ इस तरह का प्लेटफॉर्म बनाया. अम्बेडकर साहब ने 1920 में एक पत्रिका का जो है वो पत्रिका निकाली थी मूक नाइट ट्रस्ट के बारे में. मूक नाइट ट्रस्ट की पत्रिका निकाली थी. उसी नाम से हमने एक प्लेटफॉर्म भी बनाया, एक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया. और मैं फॉर्मली बिलीव करता हूँ कि अगर आप अम्बेडकर को पढ़ेंगे, अम्बेडकर के बारे में चर्चा करेंगे, तो चीजें बहुत सारी जो हम करना चाहते हैं वो निकल के आएंगी. एक जो है और मैं इस चीज का बेसिकली जब मैं रिसेंटली रामलीला अपने बच्चों के साथ देखने गया था, तो जैसे आप लोगों ने भी बचपन में देखी होगी, हमने भी बहुत बचपन में देखी, तब भी मेरे को ध्यान आया अचानक कि भाई अगर हम रामलीला देख सकते हैं तो व्हाई नॉट हम लोग भीम लीला के बारे में बात करें. तो हमने जो है, मैंने फिर एक प्रेजेंटेशन बनाया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब की जीवनी पे. और वो प्रेजेंटेशन फिर मैंने जगह जगह काफी बच्चों को भी दिया, या मैं जहाँ भी जाता हूँ वो प्रेजेंटेशन देता हूँ. तो बात यह है कि अम्बेडकर साहब हमारे लिए इतना कुछ कर गए हैं और इतना कुछ जो है वो लिख के चले गए हैं, लेकिन हमारी जो जनरेशन है, जो खासकर जो यंग जनरेशन है, उसको हमें अवेयर करना है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब के बारे में. पहली बात तो ये. तो उसी के चलते मैंने ये ट्रस्ट भी बनाया है और उसके बारे में हम जो है ये प्रोग्राम भी करते रहते हैं. सर से भी काफी इसके बारे में हमारी जो है वो चर्चाएं होती रहती हैं कि किस तरह जो है ना वो हम लोग सोसाइटी में फीडबैक कर सकते हैं. मैं 2-3 चीजें जो है इसके बारे में बोलना चाहूंगा कि एक तो हमारे जो इंटरनल डिफरेंसेस हैं सर, विद इन द कम्युनिटी हमारे बहुत इंटरनल डिफरेंसेस हैं. अगर हम काम कर पाए किसी भी लेवल पे, कैसे भी करें, मिल बैठ के बात करें, जो हमारे इंटरनल डिफरेंसेस हैं, डिफरेंट जैसे हमारे डिफरेंट जो है, कोई जाटव है, कोई चमार है, कोई मतंग है, कोई धानक है, तो ये जो है हमारे, हम एक तरह से सोच भी नहीं पा रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म पे बैठ के हम बात भी नहीं कर पा रहे हैं.
और इसका फायदा जो है वो बाकी कम्युनिटीज के लोग उठाते हैं। बाकी कम्युनिटीज के लोग काफी ऑर्गेनाइज हैं। मैं जब मिजोरम में था तो the whole society was very organized. They used to work under one leader. तो मैं मतलब बहुत सोचता हूँ कि जो है हम लोग जो हम इंटरनल डिफरेंसेस जो है हमारे जो क्रिएट हो रखे हैं उस पे हम कैसे काम करें इसके बारे में चर्चा करना और इसके बारे में काम करना भी बहुत जरूरी है। और इस पे जो है जो सोसाइटी जो आपने बनाई है SIAACB जो सोसाइटी बनाई है और बाकी काफी मंच बने हुए हैं, अगर हम मिलके और इस तरह हम काम करें तो ये काफी फायदे की बात हो सकती है। एक एक चीज और है कि चाहे वो प्रोफेशनल्स हो, चाहे वो गवर्नमेंट सर्विसेज में हो, चाहे वो स्कूल कॉलेजेस में हो, हमारी सोसाइटी में मनोबल की आई थिंक काफी कमी रहती है। मेरी रिसोर्सेज हमारे पास कम है, लेकिन उस मनोबल को या उस कॉन्फिडेंस लेवल को वो कैसे बढ़ाया जाए। एक जो है जो गिल्ट फीलिंग जो है हम लोगों के बच्चों के दिमाग में रहती है कि भाई ये रिजर्वेशन वाले हैं या ये कोटा वाले हैं। गिल्ट फीलिंग भी हम लोगों के आई थिंक चाहे वो स्कूल है, चाहे वो कॉलेज है, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ है, तो उसमें भी हम लोगों को वो काफी जो है नुकसान करती है। इस पे हमें जरूर आई थिंक मिल के बैठ के बात करनी है कि हमें जो है अपना मनोबल ऊपर रख के ऑर्गेनाइज तरीके से मिल के जो है हमें जो है वो आगे बढ़ना है। अभी रिसेंटली मैं किसी वकील साहब के पास बैठा था किसी कंसर्न में एंड वकालत के बारे में जो है वो चर्चा हुई कि दिल्ली में तो वो मुझे बोले वो वकील साहब मतलब जनरल कैटेगरी के हैं, वो बोले कि भाई एससीज को यानी हमारे हमारे समाज के वकीलों को तो वकालत भी करनी नहीं ठीक से आ पा रही है। मैं उन्होंने कुछ उदाहरण भी दिए कि कुछ जो है दिल्ली में जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं या जितने भी वेरियस अदर प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें बाकी सोसाइटी के जो वकील हैं वो मच बेटर ऑर्गेनाइज है, मच बेटर अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, उनकी वकालत भी बहुत अच्छी चल रही है। तो मैं देखता हूँ कि हमारे जो है जो वकील भाई हैं या जो अभी मुझे कुछ मौका मिला साथियों से बात करने का, तो वो वहाँ प्रोफेशनली भी वो इतना तरीके से अच्छे तरीके से वो जो है काम नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके उस लेवल पे भी हमें जो है कुछ इनको सहायता करनी है या जो भी हम प्लेटफॉर्म बनाए। ये जैसे मेरी जज साहब से MC मेहरा साहब से भी इस पे चर्चा हो रही थी कि किस प्रकार जो है हम अपने एक प्लेटफॉर्म बनाए कि अपने बच्चे जो नए वकील आ रहे हैं उनका हम जो है उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएं या उनको क्या दिक्कतें आ रही हैं। हमारे बहुत से रिटायर्ड जजेस हैं, रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, वो हमारे जो यंग लॉयर्स हैं उनकी स्पेशल क्लासेस भी ले सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि हाउ टू मूव अहेड इन द प्रोफेशन। एक ऐसा जैसे आज आपने ये प्रोग्राम किया है, तो एक जो है मैं चाहूंगा कि मतलब gather 100 lawyers, young lawyers, and then there are retired judges and even serving judges who can come and teach them how to move ahead in their profession, in legal profession. ये बहुत आई थिंक जरूरत है ताकि जो है और ये सोसाइटी बाकी सोसाइटी के लोग कर रहे हैं। मेरी जब चर्चा होती है इस बारे में तो बाकी सोसाइटी ने इस प्रकार के प्लेटफॉर्म बनाए हुए हैं कि वो अपने बच्चों को बस सिर्फ जो है बताते हैं कि कैसे जो है वो जो है आगे बढ़ा जाए, कहाँ पे आपकी कमियां उनसे बात की जाए। इवन जो है उनको हम एक चैम्बर्स की जो है वो बैठने की सुविधा दे सकते हैं, बिठाने की सुविधा दे सकते हैं, उनका मनोबल और उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं। यानी एक सिंपल सी कहानी है कि अगर कोई हरियाणा से या राजस्थान से या यूपी से कोई अगर हमारे हमारे सोसाइटी का बच्चा कोई वकील बन के अगर आता है तो उसको जो है सबसे पहले जैसे कोर्स में उनको दिक्कत आती है कि भाई हाउ टू स्पीक इंग्लिश, क्योंकि जब आपको
अब आपको प्रेजेंट करना है केस, मोस्टली जो है बाकी जो है कोर्ट्स में, हाई कोर्ट में या लोअर कोर्ट्स में आई थिंक जो है यहाँ पे इंग्लिश आती है, तो एक उनको इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का एक जो है उनको कोर्स कराया जाए, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे कराया जाए उनको मिलके, और बाकी जो है उनको जो है हम जो है एक एक स्टाइपेंड इकट्ठी करके, मनी इकट्ठी करके उनको वैसे भी जो है हम सपोर्ट कर सकते हैं इनिशियली, और उनका बूस्ट कर सकते हैं कॉन्फिडेंस। तो ये सब चीजें जो है हम बेसिकली कर सकते हैं। अब जैसे बाबा साहब ने भी जो है जो हमारा बनाया था, जो ये बहिष्कृत हितकारिणी जो समिति बनाई थी 1924 में, उन्होंने भी जो है इसी प्रकार से काम ये शुरू किए थे, होस्टल्स बनाए थे, लाइब्रेरीज बनाई थी। और मैं चाहूंगा कि हम जो है नॉट ओनली अपने जो हम पढ़े लिखे लोग हम इकट्ठे होकर जो चर्चाएं करते हैं, हमें इस चर्चा में हमारे जो गांव देहात के जो हमारे लोग हैं जो कि हमसे जुड़ नहीं पाते हैं किसी वजह से, तो उनको भी हमें जोड़ने का काम करना है। यानी अगर मैं मूव ट्रैक ट्रस्ट में मैंने एक फंक्शन जो है नजरगढ़ में किया था, तो जो उत्साह, जो पैशन नजरगढ़ में लोगों ने बाबा साहब के बारे में बातें उन्होंने की या जुड़ने की जो कोशिश की, वो पैशन जो है हमारे शहर के बच्चों में नहीं नजर आता है। तो मैं फॉर्मली बिलीव करता हूँ कि हमें ये सब चीजें जब हम करते हैं शहरों में, जब हमने जैसे मैंने भी कुछ फंक्शंस किए हैं, तो हम लोगों को जोड़ना चाहिए, गांव देहात के लोगों को, उनको अपने साथ जोड़ के जो है ये चीजें आगे करनी चाहिए, ताकि जो है उनका भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। तो मेरे पास इससे ज्यादा कुछ कहने को नहीं है। बाकी जो मेरे लायक कुछ भी जैसे कोई ऐसी सेवा हो तो मुझे आप याद कर सकते हैं, एंड अगर कोई सवाल जवाब है तो आई एम अवेलेबल सर। एनी क्वेश्चन प्लीज? किसी का कोई क्वेश्चन हो तो रेज कर दीजिए प्लीज। नो क्वेश्चन, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। Shri Rakesh Pavaria is not physically present here. His father is in contact with Shri Sukhdev Singh Ji Jaj Sahab. So I request our president Shri PC Pankaj Ji to hand over memento of Shri Rakesh Pavaria Ji for further handing over to his father so that it may reach to Shri Rakesh Pavaria. Rakesh Pavaria.